Day 32. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will be visiting the Singhu border, the epicenter of the farmers' protest today at 6 p.m. There will be this will be his second visit to Singhu border. He earlier met with the farmers on December 7th. This comes as the logjam between the farmers and the centre there continues. Sources tell India Today that the government will send a letter to the farmers' unions on Monday, accepting their proposal to hold talks on December 29th. On Saturday, farmers proposed to hold talks on 4-point agenda in response to Prime Minister Modi's mega outreach. The farmers have asked the centre to discuss the modalities to repeal new laws and the mechanism to provide legal guarantee for MSP. They further demanded exclusion of farmers from being penalised for stubble burning and protection of farmers' interests in Electricity Amendment Bill. Meanwhile, upping the ante against the centre, farmers are likely to continue halting toll tax collection on Punjab and Haryana highways. On December 30th, farmers will hold a tractor rally, and on Jan 1st, protesters have invited people from Delhi and Haryana to join in the stir. सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी नहीं लेने के, तो 30 दिन से किसान बेवकूफ है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई बातचीत जहां से वे छोड़ के गए वहां से तो शुरू होगी। कहां पे छूटी थी और कहां से शुरू हुई? मैं कह रहा कि सरकार ने बगैर उसके कानून बनाए, तो किसान ने कहा कि कानून वापसी लो, यही तो किसान भी कह रहा है ना। तो बातचीत यहां से शुरू होगी। बातचीत आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि कृषि के कानून तो वापस नहीं लेंगे, संशोधन में बात करनी कर लीजिए, वो तो हमारे विरोध काउंटर प्रस्ताव बात करें, तो उससे तो उम्मीद तो नहीं लगती है। इसलिए हमारा मंच पहले छोटा था, कल लोग बढ़ रहे हैं। कल 25,000 हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जत्था पंजाब से आया, तो उसके अनुसार हमने अपना मंच बड़ा किया। आज हम कई टोल बैरियरों पे गए और वहाँ से आम लोगों की राय ये थी कि ये टोल परमानेंट फ्री करा दिए जाएं। जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसमें भी फिर ये फैसला ले लिया गया है हरियाणा का टोल फ्री कराने का। तो आप सभी से अनुरोध है कि पूरे हरियाणा में जो है वो तब तक टोल फ्री रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। It's day 32 of the farmer agitation at the Singhu border. The josh of the farmers continues to be very high. Now let me tell you, the morning process is where Guru Ka Langar is being prepared, and there you see today the main recipe, the sweet dish at least, is the jalebis out here. The preparations with deft hands being done out here, and there you look, all of this, the dal, the jalebis, the chapatis, all of it a preparation, because the farmers are the ones who have produced. Their stomachs should not go empty. Let's just try and have a word. ये किसान अकेले पंजाब के नहीं है, हरियाणा के, पंजाब के, पूरे हिंदुस्तान के हैं, पूरे भारत के हैं। इसलिए मैं भी मोदी इस बार जरूर कोई ना कोई अच्छी खबर ही लेकर आए। तो उम्मीदें हैं कि साल खत्म होने से पहले कोई सोल्यूशन नजर आ जाए। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? उम्मीदें ही कर रहे हैं, उम्मीदां पूरियां करे थे। हक लेके जावांगे जी, उतना तो नहीं जा सकते। So there you have it. Constantly chapati is being made, there is dal which is made. The josh as such is high. They say there's no way this is going to be let up. So constantly things are moving towards, but are they moving towards a solution? Because remember, there's a crucial meet on the 29th and all eyes are fixed on it. With camera person Sanjeev, this is Kamaljeet Sandhu for India Today. Now let's take a listen to Prime Minister Modi's outreach to the Sikh community amid the farm stir in his Mann Ki Baat address. गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दे, महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दे, लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई। दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे, दीवार ऊंची होती रही, मौत सामने मंडरा रही थी, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी ने भी शहादत दी थी।
Now, amid the ongoing farmers' protests, India Today brings you this ground report on how funds are collected to support the protests. Ashutosh Mishra's filed this report from the ground, Siakla, Punjab. Let's take a listen. In the state of Punjab, it has been more than 3 months farmers are agitating against the farm laws. In many villages, remote areas of Punjab, most of the farmers have left to Delhi, Singhu, Tikri and Ghazipur border. The question that would come in mind, that who is here back at home taking care of the standing crops in the field if farmers have left to Delhi? Well, to find out the answer, we are here in Sialka village, some 50 kilometers from Amritsar. So what I get to know that most of the farmers, those who have left back here, the people in the village and the family members, including the women and kids, they are here taking care of these standing crops. One of the biggest movement, taken by the farmers from Punjab to the national capital against the farm laws. खुशदीप, ये हम समझना चाहते हैं, सबसे जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो पंजाब से हुई, वो कौन सी दिक्कतें हैं खेती और फसल को लेकर के जिसकी वजह से किसान को सड़क पर उतरना पड़ा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 फसलों की एमएसपी पे सरकार ने तय की थी, लेकिन हमें ये 2 फसलों की मिलती है, वो भी पूरी अच्छी तरह से नहीं मिलती। अभी वो भी बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ सब्जियां बोई गई हैं, गोभी की फसल है, वो मंडी में किस रेट पे बिक रही है? वो अभी मेरे हिसाब से तो 5 से या 7 रुपए तक बिक रही है। वो हमारा खर्चा भी पूरा नहीं होता। 1 एकड़ में कितना खर्चा लगा गोभी उगाने में? वो 1 एकड़ में 30 से 35 हजार खर्चा ही आ जाता है। और कभी जो लागत है वो 1 एकड़ में कितनी निकल रही है? वो लागत लग जाती है हमारी 30 से 35 हजार, लेकिन वो कभी कभी तो खर्चा भी नहीं पूरा होता। सियालका गांव के कितने लोग दिल्ली गए हैं आंदोलन करने? सियालका गांव से एक दफा तो एक ट्राली हुआ ही है, 5-10 आदमी गया, फिर जाने को तैयार। वो पहला ग्रुप आ गया है वहाँ से होकर, 15 दिन रहा उधर और फिर वहाँ फिर जा रहे हैं। पर हम ये समझना चाहते हैं कि किसानों के अंदर वो डर क्यों है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये आकलन आपने कैसे लगाया? ये सरकारी एजेंसियां बता रहे हैं, सब लोग ही बता रहे हैं, एमएसपी तो खत्म हो ही गई है। हमको तो पता चलेगा कि सरकारों ने बड़े बड़े घरानों में जमीन तय कर दिया कि बेच देनी है, अब दे भी दी है। अब लोग जो उनके गोदाम है जहीं जी भी है वही भी कदम उठाए हैं, उन लोगों को उठा रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ये मतलब मारू नीतियां हैं तो ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये डर क्यों है कि सरकार एमएसपी से भागना चाहती है? सरकार को जब तो जरूरत होती है तब तो एमएसपी देती है, जब उसके पास सरप्लस हो गया, जो भी अनाज सरप्लस हो गया तो वो हाथ पीछे खींचना चाहती है। जब हाथ पीछे खींचेगा तो उसमें प्राइवेट मार्केटिंग की उसने बात की। जब प्राइवेट मार्केटिंग की बात की तो प्राइवेट तो आएगा ही। जब वो स्टोर करेगा, सरकार के पास अनाज नहीं होगा तो वो जो है वो 8 रुपए ज्वार लेकर उसका 150 रुपये किलो आटा जो है रिलायंस का है, तो वो जो 8 रुपए की ज्वार 150 रुपए में 150 रुपए में आटा है, वो आप हिसाब लगा लीजिए कितना मार्जिन उसमें हुआ तो किसका है। दिल्ली में जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं उसका सपोर्ट यहाँ पर है, लेकिन कई लोग सवाल भी उठाते हैं कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर ये किसान एमएसपी का रोना रह रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं है, तो ये आंदोलन कैसे चल रहे? इतने महंगे कपड़े, इतनी सारी गाड़ियां, खाना पीना। सर ये बात तो है कि जो सिख है ना, सिख भाई किसान भाई भी हैं, वो हमारे कंसेप्ट है सिक्खी में दसवंध का, हम दसवंध तो देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कल हमने जो हमारे प्रधान हैं, सूबेदार हैं, इन्होंने कल कलेक्शन शुरू किया और कल सभी ने बोला कि आपका पैसा चंदा आ रहा है। अब मोदी ने 2-2 हजार रुपया डाला है, डाला तो हमारा ही है। ये पैसा आपको कहाँ से मिला? ये जो कल हमारे हर घर से दिया है, सभी ने दे दिया है। ये गांव के लोगों ने चंदा दिया। और अब बोल रहे हैं कि जो भी आदमी है सभी ने अपनी मर्जी से जितना भी है, ये नहीं है कि अच्छा ये 2000 रुपए हैं, यहाँ किसी ने 5000 रुपए दिया है। 300 रुपए भी दिए हैं। 300 रुपए दिया है। जो एक बार ये भी शॉट दिखाएं कि यहाँ पर ये जो है ये 200 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 500 रुपए। और हम लंगर के लिए जहाँ कोई भी जो हमारी कम्युनिटी का काम होता है तो उसके लिए कलेक्शन करते हैं। It's one of the biggest bonanza. Prime Minister announced 18,000 crore rupees for the farmers, where farmers were given 2,000 rupees in their account. Here in Sialka village, these farmers have also received rupees 2,000 in their account, and that was credited. That's at Kisan Message, and all of them, they are having this
text where it says that 2,000 rupees has been credited in their account, and that is ECS PM Kisan Benefit. So that has been credited in their account, and these farmers, how they are going to utilize it, that is something really interesting to hear from them. सबसे अहम सवाल, आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन उसी सरकार ने आपको 2,000 रुपए भी दिए हैं। जी, पैसा तो हमारा ही है, सरकार ने हमें दिया है। 6,000 रुपए से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी मोदी ने किया है वो बोल रहा है ना मीडिया कि कहाँ से आती है फंडिंग, तो हम तो अपनी जेब से में भी देंगे, और जो मोदी का पैसा आया अब मोदी जी फंडिंग कर रहे हैं किसान आंदोलन को। सभी किसान मेरे जैसे हजारों होंगे, जहाँ हमारे जो ये परिवार है इस जैसे हजारों किसान हो गए, जो 2,000 रुपया वहाँ जाएगा। बाबा जी, लेकिन ये पैसा तो आपके भी काम आ सकता है खेतों में, या जरूरत है इसीलिए किसानों को दिया जा रहा है? नहीं, खेतों में भी आ रहा, पर ਅਸੀਂ दान भी कर रहे हैं ना। जो भी पैसा आ रहा है ਜਾਂ अपने कोलों भी दे रहे हैं, पिछली बार भी दिया, ਹੁਣ भी लेके जा रहे हैं 9 तारीख को। So how the funding for the one of the biggest agitation is being done? The farmers here in the remote parts of Punjab, in this temperature, the adverse condition where the temperature is hardly 6-7 degree, these farmers are carrying out a meeting, public meeting, where they are going door to door in group of these farmers, visiting every household, seeking contribution for one of the biggest agitation that is happening on the borders of the national capital. Here, this lady, the very senior lady from this village, just contributed rupees 2,000 to these farmers, and that's how the funding is being done, from 50 rupees to 5,000, and that's how the farmers are donating. Not only cash, also the essential items, be it the bag of grains, vegetables, and everything that they could possibly contribute from their pocket, from their house, for the agitation to their farmers who are sitting in Delhi. To the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.